तो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? हाँ। Sir, I think you have asked a very important question, and it's important for me to explain this to everyone. डॉक्टर ईशान, आमतौर पर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की करवाते हैं Hmm. और क्या ये सिर्फ एक लुक्स बदलने तक ही सीमित है या इसके और भी कुछ फायदे हैं? तो सर मैं जो कहना चाहता हूँ कि सी कॉस्मेटिक सर्जरी इज यूजुअली डन यस टू इम्प्रूव। सबसे ज्यादा किस तरह के पेशेंट आपके क्लिनिक पे इस तरह आते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैम गाइड टीवी, जहां हम सेहत, सुंदरता और जिंदगी से जुड़े अहम मुद्दों पर विशेषज्ञों से बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर ईशान सरदेसाई, जो एक जाने माने प्रख्यात प्लास्टिक और फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन है, साथ ही द फेस सेंटर के फाउंडर भी हैं। आज हम उनसे कॉस्मेटिक सर्जरी की हकीकत, उसके फायदे, उसके जोखिम और उससे जुड़ी तमाम गलतफहमियों के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास बातचीत। डॉक्टर ईशान, आपका ग्लैम गाइड टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आके बहुत बहुत खुशी हुई। डॉक्टर, सबसे पहले आप हमें अपने करियर और कॉस्मेटिक सर्जन बनने का जो जर्नी रही उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा। So, sir, I first did my MBBS, which is, हम्म, as you know, ये 5.5 year का program है. Then I did my MS in ENT head and neck surgery, and then I super specialized in facial cosmetic surgery, facial plastic surgery, which is a very unique field. जहाँ पे हम खासकर we focus on the cosmetic refinements or cosmetic improvements of the face and neck. तो हम ये नॉन इन्वेसिव वे में कभी भी करते हैं, मिनिमली इन्वेसिव वे में भी करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन्वेसिव वे में भी करते हैं, दैट इज द सर्जरी. सो दिस वाज माय जर्नी. सो हाउ वी डू फर्स्ट MBBS, देन वी डू आवर रेजिडेंसी, then we do various fellowships and specializations ताकि हम बिल्कुल we get very nowadays it's a world of specialization, so everyone is specialized in a very specific part of the body, a very specific type of surgery or very specific type of medicine. So aesthetic medicine, facial cosmetic surgery, this is my core expertise. Yes. तो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है और आम लोगों कि इसमें ऐसी क्यों कंफ्यूजन है कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स का डिफरेंस लोगों को नहीं पता? हाँ। Sir, I think you have asked a very important question, and it's important for me to explain this to everyone. Plastic surgery is not only cosmetic surgery. Okay. प्लास्टिक सर्जरी मतलब रिकंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि आपके बर्न्स पेशेंट्स का बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट होता है थ्रू प्लास्टिक सर्जरी, लॉट ऑफ ग्राफ्टिंग, फ्री फ्लैप्स, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन, नर्व रिकंस्ट्रक्शन, हैंड. सो द रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. एंड देन देयर इज अ डिफरेंट kind of surgery which is cosmetic surgery. Cosmetic surgery मतलब cosmetic medicine. उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका आ गया बोटॉक्स, फिलर्स, फेसलिफ्ट्स, राइनोप्लास्टी, ये सब चीजें. So they're very different things. So there are some people who are specialized in specifically the reconstructive part, some people who are specialized specifically in the cosmetic part, or some people who do everything. And then within the field there are some people who do specifically for breast and body. Some people do only for the cancer reconstruction. Some people like me go into the facial cosmetic route, which I came through my ENT background into this. So that is a very different kind of field. तो ये बहुत आजकल super specialized, sub specialized हो गया है. And there are, and definitely, like, I do not consider myself a plastic surgeon because I am working only with the cosmetic aspect. So I am a cosmetic surgeon. But if there is someone who is doing the reconstructive part as well and who has gone through formal training of that, then they become a plastic surgeon. So there is a difference. We should know this, and we should know that we should go to someone who is very much specialized in that particular branch or field or particular part of medicine. ये अच्छा डिफरेंस आपने समझा दिया. कम से कम पेशेंट को ये तो क्लियर तो रहेगा ना कि भाई प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स का डिफरेंस में डिफरेंस है. This different, it's not the same. Like I only work with cosmetic cases. I am no longer doing, in the past, yes, मेरा exposure रहा है with reconstructive elements of cancer surgeries and all. लेकिन अब वो मेरे practice में नहीं है. That's why I identify as a facial cosmetic surgeon, and that's the difference between a cosmetic surgeon and a plastic surgeon. डॉक्टर ईशान, आमतौर पर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की करवाते हैं और
क्या ये सिर्फ एक लुक्स बदलने तक ही सीमित है या इसके और भी कुछ फायदे हैं? तो सर मैं जो कहना चाहता हूँ कि सी कॉस्मेटिक सर्जरी हम्म, इज यूजुअली डन यस टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द फेस। हम्म, आप चाहे फेस को लिफ्ट कर रहे हो, हम्म, या फिर आप रिंकल्स हटा रहे हो, हम्म, या फिर आप बॉडी से फैट कम कर रहे हो, तो यस दिस इज अ कॉस्मेटिक एलिमेंट। हम्म, लेकिन आई बिलीव कि हम्म, बाय इम्प्रूविंग समवन्स कॉस्मेटिक लुक आप उनके कॉन्फिडेंस, हम्म, आप उनके पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, बिकॉज दे हम्म, आर मोर कॉन्फिडेंट, दे आर मोर सिक्योर, हम्म, दे फील मोर हैप्पी गोइंग आउट इन पब्लिक। तो ये हम्म, मेंटल एस्पेक्ट भी है इसमें। हम्म, काफी लोगों की जो इनसिक्योरिटीज है वो भी हम दूर करते हैं। हम्म, देन देयर इज अ सेकंड एलिमेंट, देयर आर सम कॉस्मेटिक सर्जरीज जिसमें फंक्शनल एलिमेंट है। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं राइनोप्लास्टी या नोज जॉब व्हाट वी कॉल ये नाक को सीधा हम्म, करने का वो ट्रीटमेंट करते हैं, हम्म, हम अंदर से भी नाक को सीधा करते हैं, विच इज ओके, नोन एज अ सेप्टोप्लास्टी, विच मीन्स हम आपके ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव कर रहे हैं इम्प्रूव कर रहे हैं एंड हम आपके नोज के शेप को नो इम्प्रूव कर रहे हैं। सेक्शन। सो इट हैज अ फंक्शनल एलिमेंट एज वेल, हम्म, which is important to keep in mind for हम्म, that kind of thing. हम्म, Many times there are patients जिनका जो ये lid upper lid का जो skin है हम्म, वो बहुत loose और droopy आ जाता है। हम्म, It makes their, you know, sometimes the हाँ eyes हाँ become very बिल्कुल small, स्मॉल small, स्लिप्स and that can cause, you know, issues with even your vision and, you know, your not हम्म, just your appearance, but हम्म, even with your vision. हम्म, So when you lift the eyelid or you remove that excess eyelid skin, आपका functional improvement भी हो रहा है, हम्म, because then you know you can you can see better, you're not bothered, वो loose skin आपके eyes को cover नहीं कर रहा, so these kind of things are also हम्म, important. हम्म, This is, and sometimes sir there are patients जो this is actually not I don't do these surgeries, but this is something which I should tell. Let's say someone has undergone drastic weight loss या मतलब they've lost a lot of weight and हम्म, उनके बाद skin loose हो जाता है, you know, they become the skin become either यस from their यस arms or from their हाँ हाँ body and बॉडी stuff. एंड तो उसको जो हम सर्जरी करते हैं ठीक करने के things like tummy tuck with liposuction और इसमें हम्म, functional element भी तो है। बिल्कुल है आपका स्किन जो ऐसे इतना लूज है, लूज इट्स अ है वेरी बिग सोशल हम्म, एम्बैरेसमेंट, इट फील्स वियर्ड। तो हम्म, जैसे ही वो क्लियर हो जाता है आपके बॉडी, वंस इट बिकम्स मोर इन शेप, वो हम्म, पेशेंट को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। हम्म, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट improving the appearance cosmetically, हम्म, it's also about improving the patient's confidence, their हम्म, mindset हम्म, and functional improvements in their body. ओके So the ओके and one more thing is, let's say हम्म, किसी ने जो मैं काफी अपना यहाँ पे वर्क करता हूँ, किसी के फेस पे स्कार आ गया, हाँ either through a previous surgery या through a burn या फिर कुछ भी हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो हो गया सकता और है वो हाँ स्कार आ जाता है स्कार आ फेस पे। जाता है हाँ तो स्केचेज वो और स्कार को चलो हम कॉस्मेटिकली ठीक कर रहे हैं, हम्म, लेकिन जब वो स्कार कॉस्मेटिकली वंस द स्कार इज इम्प्रूव्ड, हम्म, तो फंक्शनली भी वो बेटर हो जाता है। ओके लाइक इन टर्म्स ऑफ दैट द बॉडी, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पे स्कार है वहां पे स्किन बिकम्स हेल्दियर, फंक्शनली इट्स इम्प्रूव्ड। हम्म, समटाइम्स देयर कैन बी सम नर्व डैमेज आल्सो व्हेन यू गेट इंजरी। जैसे हम्म, आपकी नर्व डैमेज की वजह से आपका फेस थोड़ा ऊपर नीचे हो ऊपर हो सकता है, जैसे जाता है आपका स्माइल ऊपर चला गया या फिर आप हाँ एक हाँ साइड से अपनी आईज को यस 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 हाँ क्लोज नहीं कर पाते। दैट इज आल्सो एन एलिमेंट कि कॉस्मेटिकली वी हम्म, यूज थिंग्स लाइक बोtulinum टॉक्सिन जो हम हम्म, बोटॉक्स बोलते हैं, कि हम्म, आपके फेस को हम थोड़ा सिमेट्री दें। सिमेट्री दे And even there are surgeries also for that, which, you know, like you can connect different nerves to reanimate the face, ताकि हम्म, आपका smile becomes more symmetrical, हम्म, आपका eyes closure becomes more हम्म, symmetrical. So there is lots of things happening. You know, it's not just about cosmetic, it's about कॉस्मेटिक्स improving functionality as well. एज वेल Yes. ओके तो अभी आपने बहुत अच्छा डिफरेंस समझाया लुक्स और ये लेकिन ये कई बार लोग आकर के कहते हैं कि फिलर्स बोटॉक्स Hmm. या फेस लिफ्ट तो ये क्या है कैसे इसको आप देखते हैं कि और किस तरह से इस चीज को आप कर देते हैं कि लोगों को आकर के कि भाई बहुत सारे फेस को रिंकल्स आ गए हैं Hmm. या एंटी एजिंग्स के लिए Hmm. लोग आते हैं तो उसको कैसे आप देखते हैं सी एंटी एजिंग एक बहुत बहुत बड़ा टर्म है, इट्स अम्ब्रेला टर्म। इसमें हम्म, काफी चीजें हैं। हम्म, तो इसमें आपके नॉन इन्वेसिव ऑप्शंस भी आते हैं, हम्म, मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस आते हैं हम्म, एंड सर्जिकल ऑप्शंस भी आते हैं। हम्म, तो लेट्स से, क्योंकि आपने मेंशन किया बोटॉक्स, हम्म, बोटॉक्स का काम है कि जो आपके फेस पे लाइंस आ रहे हैं, व्हेन यू मूव योर आईब्रोज, ये जो लाइंस आ रहे हैं, या फिर आप जब स्माइल करते हो तो यहाँ पे यहाँ पे आ लाइंस आ रहे जाते हैं। हैं यस So this can be used for the Botox can be used cosmetically हम्म, to improve the appearance of dynamic lines. हम्म, Dynamic lines मतलब सर कि जब आप expression करोगे
फ्राउन करोगे या आईब्रोज रेज करोगे, तो जो लाइंस बनते हैं उनको अगर हमें कम करना है। बट बोटॉक्स ऑल्सो हैज थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स, मतलब फंक्शनल बेनिफिट्स भी हैं बोटॉक्स के। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का रात में टीथ ग्राइंडिंग बहुत हो रहा है, दे हैविंग लॉट ऑफ, ये बार बार नाइट में दे ग्राइंड देयर टीथ, इस वाले जॉइंट पे स्ट्रेन पड़ता है, तो हम बोटॉक्स यहाँ पे लगाते हैं ताकि वो मसल रिलैक्स हो जाए, सो दैट कैन बी यूज्ड थेरेप्यूटिकली। देन बोटॉक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पीपल हु हैव मसल स्पैज्म, जैसे यहाँ पे अगर आपके ट्रेपेजियस, ये ट्रैप्स में स्पैज्म है तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव हो गया है बोटॉक्स। आई डू इट फॉर मेनी माइग्रेन पेशेंट्स, यस, जिनका हेडेक स्पेसिफिकली कुछ मसल्स हाइपर एक्टिव हैं, सो वी रिलैक्स दोस मसल्स और आपके माइग्रेन सिम्पटम्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। नाउ फिलर्स आर लाइक इंजेक्टेबल जेल्स। उनका काम है स्ट्रक्चर बनाना, मतलब जैसे किसी का जॉ लाइन क्रिएट करना है या फिर लिप्स में थोड़ा डेफिनेशन या वॉल्यूम बनाना है, ये फिलर का काम है। सो इट्स एन इंजेक्टेबल काइंड ऑफ जेल और एन इम्प्लांट जो आपके फेस को स्ट्रक्चर देता है। एंड जो आप व्हाट हैपेंस विद एजिंग इज कि आपके जो फेस में फैट पैड्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और ये या श्रिंक हो जाते हैं, एंड दीज फैट पैड्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंटेग्रिटी और शेप ऑफ योर फेस। तो वो फिलर्स एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट फैट पैड, मतलब जैसे आपने फिलर डाला वो फैट पैड जैसा काम कर रहा है, तो इट गिव्स यू सम स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द फेस। दैट्स द फिलर्स, एंड देयर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिलर्स। पतले फिलर हैं, मोटे फिलर हैं, इन अ वेरी बेसिक वे टू एक्सप्लेन। वो फेस के अकॉर्डिंग, पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट दे वांट टू अचीव वो हम कर सकते हैं। एंड देन जो आपका सर्जरी है, दैट इज फेसलिफ्ट सर्जरी, सिंस यू मेंशन, उसका मेन काम है कि आपका जो सैगिंग लूज स्किन है अराउंड योर जॉ लाइन या फिर आपके ये नेजोलेबियल या मैरोनेट लाइन बड़े डीप हो गए हैं, इनको लिफ्ट करना, एक्सेस स्किन को काटना either on the neck or the face to do to kind of lift what we as by face lift मतलब lift का मेन काम है सर्जरी। एंड देयर आर सम सर्जरी इज द मोस्ट, आई वुड से, द ड्रास्टिक, जो स्पेशली जिनका काफी ज्यादा सैगिंग है उनका बेस्ट ऑप्शन समटाइम्स इज द सर्जरी, ड्रास्टिक ऑप्शन। बट देन देयर आर अदर ऑप्शंस दैट वी डू, थिंग्स लाइक अल थेरेपी, जो आपका अल्ट्रासाउंड लेके हम लिफ्ट करते हैं फेस को, फिलर्स एंड थ्रेड लिफ्ट्स भी हैं आजकल जो मैकेनिकली लिफ्ट करते हैं फेस को। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। द मेन थिंग इज टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद द पेशेंट टू एनालाइज द फेस। मैं मेरे सारे पेशेंट्स को पहले बोलता हूँ कि पहले आप आ जाओ, लेट्स लुक एट योर फेस, एनालाइज इट कि आपका कहाँ पे सैगिंग ज्यादा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, देन वी कैन मेक अ प्रॉपर सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्लान depending on, and also we have to take into consideration the budget. Obviously सबसे बॉस तो वही आके रुकते हैं, मतलब हाँ, so वो बजट वगैरह में भी आना चाहिए। and जो the reason why what I tell my patients, सबसे पहले मैं उनको थोड़ा before and after दिखा देता हूँ कि ये करने के बाद ये आपका हो सकता है, and then they feel कि okay, फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं, and then they have to discuss with family also. Some people take personal decision, लेकिन किसी के discuss with the family. हाँ, कई लोगों के मिल के साथ डिसीजन होता है, हाँ, कि भाई ये करना चाहिए, इस पे नहीं कराना चाहिए। Exactly. तो डॉक्टर सबसे ज्यादा किस तरह के पेशेंट आपके क्लिनिक पे इस तरह आते हैं? सब कुछ सर। सो सिंस आई हैव अ बैलेंस ऑफ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल प्रैक्टिस इन माय क्लिनिक, पेशेंट सब चीज के लिए आते हैं। अगेन एज ग्रुप वेरीज। आजकल तो आई एम गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स, मतलब यंग पेशेंट भी आ रहे हैं, ओल्डर पेशेंट्स भी आ रहे हैं, मेल फीमेल का भी बैलेंस है। मेरा वन मोर थिंग व्हिच वी हैवंट डिस्कस्ड येट, जो मैं बहुत यहाँ पे करता हूँ, इज हेयर। इतने सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, मतलब हेयर फॉल के मेडिकेशंस अप टू हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, सब कुछ मैं यहाँ पे अपने सेंटर पे करता हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, कंसल्टेशन में क्या बात होती है, प्रॉपर डायग्नोसिस हम करते हैं। तो इट्स लाइक अ मिक्स, आई वुड से। सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं। आजकल अवेयरनेस तो सब जगह है। सो तो ये जो आपने हेयर्स की बात करी, तो हेयर्स जैसे आजकल देख रहे हैं, किसी की मांग चौड़ी हो गई, या बीच से स्पॉट आ रहा है, या कई बार सराउंडिंग से कुछ जगह से पैच बन जाते हैं, कई बार बिल्कुल, इस तरह की चीजें हो रही। बिल्कुल। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? तो सर फॉर मी, जो मैं यहाँ पे ट्रीट करता हूँ इज मेनली योर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मतलब आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो मोस्ट कॉमन बॉल्डनेस वाला पैटर्न है। इन मेन क्या होता है कि आपके ये
टेम्पल से हेयर थोड़ा हाँ, रिसीड हो जाता है recede, एंड पीछे वहां पे दैट वो स्पॉट आ ये जाता स्पॉट है. आ जाता है। हाँ, और फीमेल्स में यूजुअली ये है कि वो सेंट्रल दैट मांग हाँ, वो दैट थोड़ी चौड़ी हो जाती चौड़ी है, हो हो जाती है. जाती है, यस। तो वी ट्रीट विथ मेनी थिंग्स. हम मेडिसिन भी देते हैं, टॉपिकल मतलब सीरम्स भी लगाने के लिए देते हैं, हम्म। और इन क्लिनिक वी डू थिंग्स लाइक पीआरपी. आपने शायद सुना होगा कि बिल्कुल। हम आपके ब्लड को निकाल के हाँ, वी यूज द पावर ऑफ योर ओन ब्लड, मतलब अपने ही हम्म, ब्लड में जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करके हम्म, वो आपके स्कैल्प में माइक्रो नीडलिंग या इंजेक्शन के थ्रू हम डालते हैं. एंड देन इफ द केस इज अ लिटिल बिट मोर आई वुड से एडवांस, जहां हम्म, पे कोई अपना हेयर लाइन रिक्रिएट करना चाह रहा है या हम्म, ऑलरेडी बॉल्डनेस काफी इट्स रीच्ड एडवांस स्टेज, हम्म। देन वी कंसिडर द हेयर ट्रांसप्लांट हेयर सर्जरी. ट्रांसप्लांट। और वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. वी डू द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स एंड ऑल, क्योंकि हमें ये करना है. जब व्हेन वी आई वाज वेरी लकी टू हैव ट्रेन्ड विद सम वेरी वेरी अमेजिंग सर्जन्स, मतलब हम्म, बहुत ही एथिकल और बहुत ही मतलब एडवांस सर्जन्स हैं ये. एडवांस एंड दे गिव मी दीज मतलब सर्जिकल प्रिंसिपल्स विद हेयर ट्रांसप्लांट कि यू हैव टू मेक इट नेचुरल. हम्म, इट शुड बी वो आर्टिफिशियल लुक तो कभी भी अच्छा नहीं लगता ना, हम्म, बिल्कुल वो जो स्ट्रेट हेयर लाइन आ जाता हाँ, है, एग्जैक्टली। दैट डजंट लुक गुड. दिस इज ऑफ कोर्स योर डोनर एरिया, मतलब हाँ, ये जो हेयर के बैक वाले पार्ट से. हम्म। लेकिन हम कभी कभार यहाँ से भी लेते हैं, ये जो शैडो एरिया हाँ, है हाँ, बिलो हाँ, द जॉ लाइन, हाँ। बियर्ड से भी हम ओ, ले अच्छा, सकते. हाँ, बियर्ड कोई वहां पे स्काल्प बियर्ड में यूज कर बियर्ड लेते के भी हैं? हेयर निकाल के हम स्कैल्प पे डालते हैं, एंड वी हाँ, इवन यूज चेस्ट हेयर हाँ, एंड थिंग्स लाइक दैट कैन बी यूज्ड वेरी, in very lot of things are happening, lot of things are happening, and there are some people doing very very good work. हम्म, And we even not and transplant surgery is not only for hair on the head हम्म। but also for eyebrow, मुस्टैच, mustache and beard and all बियर्ड, that we do. ओके। So इट्स अ गुड जॉब डॉक्टर। अच्छा, काफी कुछ हो रहा है. हाँ, तो ये कितनी सीटिंग्स लेनी पड़ती है इसकी? So very good question, sir. That depends on the grade of baldness. ओके। Usually अगर किसी का if they early grade 2 3, मतलब जो early stage balding का है, तो maybe even in one surgery we can cover the full bald area. In some cases we call them back up for a second sitting after a few months. मतलब पहले वो 6 महीने बाद जब वो थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा आ जाता है फर्स्ट सर्जरी का, then जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए भी कॉल देम सेकंड टाइम. देन आई नो ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल हु डू वेरी लॉन्ग, जो 2-3 दिन में भी वो सर्जरी करके वो पूरे एरिया को कवर करते हैं. So there are some people who do that. In my personal practice, I like to start with a single sitting, which is up to around 3,000 grafts. Usually, I go to 3,000 grafts maximum. And then, if the patient requires more number of grafts, then I call him after a few months. लेकिन जैसे वो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे विजुअल्स आते हैं कि डॉक्टर्स वीविंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ब्लड्स भी आ रहे होते हैं, ऐसे भी हो रहे थे, तो क्या ये पेनफुल है Sir, so या इसका क्या प्रोसीजर है? the treatment is usually done. Hair transplant surgery is done under local anesthesia, which means we give injections in specific areas ताकि वो जो scalp के nerves है वो numb हो जाएं. ओके। And after the local anesthesia, the treatment is virtually painless. But the key thing is choose a good surgeon, a good doctor who has systems जहाँ पे amount of anesthesia is monitored, amount of blood loss is monitored, proper setting operation theater में हो रहा है ये treatment with all sterile instruments, ताकि you are in safe hands. Anesthesia is very safe provided you are in safe hands. Someone is there to monitor how much. Recently you have heard there has been some cases where even death has happened in the transplant surgery. So you have to be very careful about who you choose. उनका operation theater कैसा है? Do they have all the measures? Are they checking the amount of anesthesia, the amount of blood loss, and properly qualified trained hair transplant surgeons? This is very important. जैसा कि आपने सर्जन की बात करी कि गुड सर्जन्स होने चाहिए, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे कोई एक पेशेंट आता है और बाहर बोर्ड देखता है कि हेयर ट्रांसप्लांट है, तो उसके लिए वो कैसे जाने कि ये अच्छे सर्जन है या नहीं है, या यहाँ इस तरह की ट्रीटमेंट होता है, अच्छा होता है या नहीं होता है? यस. So ideally I would say आप चाहे उस सर्जन के वेबसाइट पे या उनके प्रोफाइल पे एक बार just research, see if they are involved in first of all what their degree is, first thing. Second thing after that ki what kind of center they are working in, have they done some specific fellowships in this hair transplant surgery after their formal medical training as well, like proper training like that. Then उनका काम देखो आप
उनको बोलो कि मुझे आपके बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट्स के वो फोटोज फोटोग्राफ एंड एक ऐसा सर्जन होना चाहिए सर जो आपको फ्रॉम डे 0 टिल योर फाइनल रिजल्ट आपको सारे चीजें एक्सप्लेन करे करे। यस ये सबसे मस्त। एंड वन रेड फ्लैग आई ऑलवेज नाउ आई एम टेलिंग माय पेशेंट्स कि अगर समथिंग इज टू चीप, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, कि आपको 10,000 20,000 रुपए में हम अनलिमिटेड ग्राफ्स लगा रहे हैं, दिस इज तो फिर आप दाल में कुछ तो काला है, आप ट्रैप में फंस रहे हो। एंड वन मोर थिंग इज समथिंग कॉल्ड गोस्ट सर्जरी, जो सम ऑफ माय सीनियर सर्जन्स एजुकेटेड मी अबाउट दिस, कि क्या वो सर्जन एक्चुअली खुद आपकी सर्जरी कर रहा है या किसी को बुलवा के आप वो सर्जरी अपने सेंटर पे करवा रहा है, जो हु कुड बी जस्ट अ टेक्नीशियन और एनीवन। बी केयरफुल, मीट द सर्जन, चाहे सर्जन को आप 10-15 बार मिलो, build that proper confidence, see the surgeon's work, go on their Instagram page, check out their website, see their qualifications, have they done any specific training in this kind of hair transplant surgery, then you make your decision. So क्योंकि अपने और मैं लोगों को आजकल साफ बोलना चाह रहा हूँ, either you do the surgery, मतलब you do the surgery from a proper place with a proper surgeon, जो obviously might be a little bit costly, but either you do that और आप कुछ मत कराओ, or don't do anything. Don't waste your time going to some shady, ये मतलब छोटा सा किसी ने दुकान कहीं पे खोल रखा है तो जहाँ पे पता नहीं क्या ही चल रहा है। नो, अपने लाइफ के साथ क्यों खेलना है यार। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके हेयर। द हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Like this is not something you're dying in a hair transplant surgery. This is unheard of. Exactly. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बंद करके रफू चक्कर हो बस उसको तो उसने तो अपने पैसे से मतलब है, उसने लिया, फिर उसके बाद तो बाकी चीजें then you just go टाटा बाय बाय। डॉक्टर इरशान, मैं जानना चाहूंगा कि मतलब क्या भारत में इसका स्कोप कितना है अभी, हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक सर्जरी या फेशियल कॉस्मेटिक्स या प्लास्टिक सर्जरी, कितना इसका भी स्कोप है? अभी तो आई फील सर दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड, इट्स अ बूमिंग फील्ड, बिकॉज आई एम सो हैप्पी टू बी इन, लाइक यू नो, आई लव माय वर्क, मुझे अपना काम करना बहुत मजा आता है, and that's a very good thing. And the reason is because field में नया कुछ आता रहता है, there's always some new technologies, new machines, new injectable treatments. अभी recently मैंने कल एक नया launch किया है मेरे clinic में, मतलब बहुत scope है। I feel अभी इंडिया में तो awareness is just building up, and the main thing for me is I like to do my work and I like to do my work ethically. मतलब जो patient की requirement है, what the patient is asking for, मैं वही करूँ, you know, because आजकल so many options हैं, so and I feel like the field is growing at an exponential rate. People are becoming more and more looks conscious. आजकल लोग ब्यूटी को लेके बहुत मतलब you know people conscious हैं, और काफी लोग client facing industry में हैं, and one saying which someone told me is beauty is power. मतलब जैसे ही कोई जिसका फेस अच्छा है, हेयर अच्छा है, जो अगर वो आपकी बॉडी अच्छी है, if they come into a room let's say for a meeting, immediately you start taking them more seriously. Yes, they have this kind of like aura about them, मतलब aura है कि अरे वाह यार, you know this. इनफैक्ट मेरी कल एक मुझे पेशेंट भी बता रही थी कि मैं आपके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि आप अपने स्किन, हेयर और बॉडी का देखभाल करते हैं। अब आप बताओ सर, you are selling you are not selling, you are talking about body contouring treatments, लेकिन आप खुद मोटे हो, कौन आएगा आपके पास? Yeah, but overall this field is growing at a very good rate. It's a lot of new things happening. वेस्ट में पहले काफी कुछ चल रहा था, अब वो इंडिया में भी आ रहा है, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, पीपल आर रियलाइजिंग कि अगर हमने थोड़ा सा अपने स्किन और हेयर पे वर्क कर लिया तो वी कैन लुक सो मच बेटर। और ये फैंसी कपड़ों का भी फिर यू नो यू डोंट नीड, इवन इफ यू वेयर द फैंसी ब्रांडेड कपड़े, ये सब भी थोड़ा वो दब जाते हैं जब आपका लुक्स अच्छा है और बिल्ड अच्छा होता है। एग्जैक्टली, सो वी एंड आजकल सर इट्स नॉट ओनली अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट होलिस्टिक वेलनेस। मतलब नॉट जस्ट कि आपको हम फेस अच्छा कर रहे हैं, आपका बॉडी अच्छा कर रहे हैं, आपका हेयर को वॉल्यूम दे रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट, हम बोलते हैं कि आप खाना क्या खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, आप पानी कितना पी रहे हो, यू नो दीज लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना अच्छा आपने वो अपना हेल्थ बना दिया उतना ही अच्छा आपका स्किन एंड हेयर विल लुक। सो हमारे जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स हैं, मैंने रिसेंटली एक्चुअली बात भी किया है एक इंटरव्यू में कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल, सो वी प्रमोट दैट इन आवर क्लिनिक, कि हमारे क्लिनिक में ये बस ये नहीं है कि हमने आपको कॉस्मेटिकली इंप्रूव कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लाइफ में हम यू नो वी मेक योर लाइफ हेल्दियर।
like you know you that is and it's all मतलब about आपका कहना है कि डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, yes आपका एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना बिल्कुल होना चाहिए, चाहिए और आपको एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, breathing you know there are certain things I have a couple of friends जो meditation वगैरह काफी करते हैं it's a very good thing करो you know it just improves your overall life quality और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ हमारे जैसे क्लिनिक्स पे ट्रीटमेंट्स करोगे तब तो भाई you're one आप जीत गए yes ग्रेट। अच्छा डॉक्टर ईशान, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी क्या आपके सच में जीवन शैली को बदल सकता है? I think it can. In my opinion, it can. Because I feel जो यहाँ पे अपना फेस या हेयर या बॉडी या यहाँ पे तो हम बॉडी के सर्जरीज नहीं करते बट फेस एंड नेक के जो लेट्स से वी डू ट्रीटमेंट्स टू एनहांस द फेस और एनहांस द हेयर आई थिंक वो रियली पीपल्स लाइव्स चेंज दे मेरे पेशेंट्स में देखता हूँ दे फील सो मच मोर कॉन्फिडेंट यस बहुत उनकी जो इनसिक्योरिटी है ना कि मुझे फोटोज नहीं खिंचाने मुझे यहाँ नहीं जाना मुझे कपड़े ये टाइप के सूट नहीं करेंगे यू नो बार बार कैप पहनना क्योंकि मुझे अपना वो बॉल्डिंग हेयर नहीं दिखाना मेनी पीपल आर नॉट एबल टू गेट मैरिड बिकॉज मेनी गर्ल्स से कि मुझे कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस यू नो अंडर कॉन्फिडेंस एंड हम यहाँ पे कुछ जजमेंट नहीं कर रहे अगर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराना अगर आपको फिलर्स बोटोक्स ये सब नहीं डोंट डू इट कोई भी आप पे प्रेशर नहीं है यहाँ पे कि आपको कराना ही है लेकिन अगर आप वैसे टाइप के पर्सन हो हु इज बीइंग बॉदर्ड बाय समथिंग इन योर फेस कि आपको चाहे आपका स्किन थोड़ा डल लग रहा है आपको लाइंस अपने ज्यादा लग रहे हैं यू जस्ट वांट टू लुक फ्रेश यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ यू नो लिटिल बिट मोर हेयर ऑन योर हेड उसके लिए आप हमारे पास आ रहे हो और जब हम वो आपको देते हैं डेफिनेटली उनकी लाइफ बदल जाती है दे फील सो मच मोर कॉन्फिडेंट जब when your insecurities are and then you know you can be a much better person to other people also sir आप अगर आप अंदर से जब खुश हो जाते हो then आप दूसरे लोग के साथ भी खुश हो सकते हैं that's what I feel so अच्छा रहा ये मतलब आपने लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया I love it I feel and काफी लोग मेरे पास you know my patients message me कि you know I'm feeling so good doc I'm feeling so happy या आपने मैंने किया मुझे like मतलब I'm just feeling much better about myself I'm like चलो that's a big thing for me yes ये तो that's the biggest thing for me sir for me that's the biggest thing for me like everything else one side ये मेरे लिए सबसे बढ़िया होता कि मतलब पेशेंट आगे कहे कि आपने मेरे अंदर आत्मविश्वास जगा दिया बिल्कुल कॉन्फिडेंस जगा दिया यस एग्जैक्टली ने ऐसी कितने केसेस देखे हैं कि जो किसी की लाइफ बदल दिया है और आकर के आपसे कह रहा है कि आपने मुझे फिर से बदल दिया मुझे फिर टीनेजर में ले गए नहीं ऐसे वाले केसेस आए हैं यस पीपल फील कि अरे लाइक मैं तो अब लग रही हूँ जैसे मैं 30 साल पहले थी होता है एंड इट्स अ वेरी लाइक आई फील गुड फॉर देम आई फील हम देखो सर हम and we are तो not उस टाइम कैसा फील करते हैं जब आपको कॉम्प्लीमेंट आता है it's very good for me and I am very happy for my patient mainly that I want to make I want them to remember my clinic and me as someone who made a positive change in their life and that's the biggest kind of you know feeling or biggest compliment I can get कि मैंने किसी को अपना just making them feel good I'm happy literally so that's the big compliments yeah big compliment it's a very big compliment is you know you sleep well at night कि चलो मैंने किसी को खुशी दी है खुश तो दी है आज खुशी एक सिंगल पर्सन भी आगे बोलता है तो उसके लिए लगता है कि नहीं यार बिल्कुल हम अपने जॉब पे एकदम परफेक्टली अपने पाथ में सब लोग तो खुश नहीं होते नहीं देखिए वो तो आप इतनी बड़ी दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते भाई अब 4 लोग हैं फैमिली में उनको खुश नहीं रख पाते तो ऑब्वियसली बट यस मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय प्रैक्टिस आर हैप्पी एंड दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी सो तो क्या कभी आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि कोई आता है कोई पेशेंट आता है कोई कस्टमर आता है कहता है कि उम्मीदें लेकर के आता है कि मुझे ऐसा बनना है और कई बार उसकी उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट नहीं आता तो उसको कैसे देखते हैं? सो सर दैट्स व्हाई जो हम डिस्कस कर रहे थे अर्लियर आल्सो कि मैं शुरुआत में एक प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपको ये यू नो मेनी टाइम्स एक ट्रीटमेंट काफी नहीं है सेशंस लगते हैं
and combined modalities required. मतलब filler के साथ maybe some threads, maybe some botox, maybe a little bit of surgical work is also required, some good skin care at home plus lifestyle, ये सब कुछ required है. इसके साथ मैं आपको ये दे सकता हूँ, मैं थोड़ा आपका I can improve your skin, I can reduce your lines, lifting वगैरह दे सकता हूँ आपको. But अगर कोई patient के unrealistic expectations हैं, मतलब either they are doing it for the wrong reasons, किसी को jealous कराने के लिए या किसी को कुछ दिखाने के लिए, that's one category, या फिर they are looking for something so crazy कि मतलब वो either मेरे क्लिनिक में वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, कहीं पे भी शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और maybe I am not yet at that expertise to give that particular treatment. Let's say it can happen. मैं साफ-साफ शुरू में ही no बोल देता हूँ. अच्छा. I say no. I say sir, ma'am, sorry, I cannot do this for you. Maybe you can consult elsewhere. वो आपको help कर सकते हैं. Because I believe in under promising and over delivering. Good. That's it. ये मेरा है, and मैं पेशेंट के साथ रिश्ता बनाना पसंद करता हूँ, so that we both understand what wavelength we are at, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगा आपके फेस को यंगर to look fresher without making you look like an alien. मतलब वो सब नहीं बनाना हमें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सो अगर मुझे पेशेंट कोई आता है और बोलता है कि मेक मी लुक लाइक हाउ आई वाज लुकिंग 30 years ago and do आई एम लाइक. And again, one previous thing is it should be economically feasible also. कि ये सब ट्रीटमेंट हम कर देंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप ट्रीटमेंट करोगे उतना कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा. आप होता रहेगा तो. So if you can afford it, if you think that I can give you the result, if you trust in me, then we go forward. नहीं, ये तो फर्स्ट है कि आपके अंदर वो ट्रस्ट लेना पड़ेगा. And I जैसे जब शुरू में ना सर, आजकल अब मेरा I've been now working now in my clinic here alone, private practice for about 3 years now. मैं समझ जाता हूँ कि ये ऐसा पेशेंट है जिसको मैं कभी खुश नहीं कर पाऊंगा. कभी खुश नहीं कर सकते. Then I say कि मैम sorry, this is beyond my level. You can go somewhere else. डॉक्टर ईशान, इतनी सारी जानकारियां आपने हमें दी. तो जैसे कि बीच में आपने बोला कि नीडलिंग, तो माइक्रो नीडलिंग. हाँ, तो ये माइक्रो नीडलिंग है क्या चीज? So actually sir, microneedling is मतलब it's a very very good treatment in my mind. उसमें हम क्या करते हैं कि आपके स्किन पे हम either एक brightening serum या फिर एक एंटी एजिंग सीरम, एक एंटी एक्ने सीरम मान लो, हम ये आपके स्किन पे अप्लाई करते हैं यूजुअली ऑन द फेस. और फिर हम एक बहुत आई यूज अ वेरी गुड डिवाइस हियर कॉल्ड डर्मापेन 4, व्हिच इज बेसिकली अ डिवाइस जो टाइनी टाइनी होल से, इट्स अ टाइनी बहुत छोटे छोटे होल से वो आपके स्किन में वो इट पेनिट्रेट्स द सीरम. हाँ, वो पेनिट्रेट करता है ताकि वो जो सीरम है वो डीपली चले जाए आपके स्किन में, एंड इट हेल्प्स यू इन ब्राइटनिंग एंड ग्लो एंड ऑल दैट. सेकंड थिंग जो ये करता है कि ये आपके वो, क्योंकि वो स्किन में ट्रॉमा करता है, माइनर ट्रॉमा, इट्स स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिन. और जैसे ये कोलेजन एंड इलास्टिन जो है ये आपके एज यू एज ये कम होता रहता है, ब्रेक डाउन होता है. तो क्योंकि हम ये प्रमोट कर रहे हैं, आपके स्किन में फाइन लाइंस कम हो जाते हैं, टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, ओपन पोर्स इंप्रूव हो जाते हैं. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट. should be done, it can be done at different depths. मतलब हम 0.5 मिलीमीटर भी कर सकते हैं, हम नीचे 2.5 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर पे भी जा सकते हैं. तो बहुत ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट है, एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स वेरी वेल विद अदर ट्रीटमेंट्स. जैसे आप इंजेक्टेबल्स करा रहे हो, फेशियल, स्किन बूस्टर्स, फिलर्स करा रहे हो, या फिर आप सर्जरी करा रहे हो, तो उसके साथ साथ आप अगर माइक्रो नीडलिंग वगैरह भी करोगे तो आपके ओवरऑल स्किन टेक्सचर में बहुत इंप्रूवमेंट आता है. व्हिच इज व्हाई आई बिलीव इन दिस कंबाइंड मोडालिटी, व्हिच आई हैव बीन ट्रेन्ड वेरी वेल विद. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू these professors and surgeons कि everything should be in combination. So microneedling in combination with other treatments, and even microneedling alone also is a very very good treatment for skin health, rejuvenation, anti-aging, सब कुछ. बस it should be done again in a proper place, जहां पे कोई आपको बता सके कि आपके ट्रीटमेंट के बाद क्या होने वाला है. 1-2 दिन तक रेडनेस रहेगा, पीलिंग हो सकता है, इट कैन बिकम ड्राई एंड ऑल दैट, ताकि आप अच्छे से हील हो जाओ, आपके साइड इफेक्ट्स ना हो. एंड इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर प्लेस इन विद स्टेराइल इन प्रॉपर प्रोटोकॉल्स. क्योंकि अगर गलत जगह पे एनी ट्रीटमेंट, ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट in the wrong place or in the wrong hands is disaster. That is disaster. So तो जैसा कि आपने बताया कि किसी भी ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट चल सकता है. तो शुगर या बीपी के पेशेंट भी इसे रेगुलरली कर सकते हैं? शुगर और बीपी के पेशेंट भी रेगुलरली ये कर सकते हैं, लेकिन जो आई टेक अ स्पेशल प्रिकॉशन इज कि मैं एक बार उनके रिसेंट ब्लड वर्क को चेक कर लेता हूँ कि आर द शुगर्स इन कंट्रोल एंड ऑल दैट. बिकॉज
द अनकंट्रोल्ड शुगर पेशेंट सर, या जो पेशेंट का शुगर इज नॉट इन प्रॉपर लेवल्स, उनमें फिर इन्फेक्शन का चांस रहता है, द रिकवरी प्रोसेस इज डिलेड। तो ये सब चीजें मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव, नॉट दैट डायबिटिक पेशेंट नहीं करा सकता, बट उनको ये सब टाइम लग सकता हाँ है, टाइम लग सकता है टू हील एंड ऑल दैट, एंड आइडियली देयर शुगर शुड बी कंट्रोल। मतलब उनके 1 महीने की 2 महीने की हिस्ट्री आपको चेक करनी पड़ती है। एक वन वी हैव एन इंडिकेटर कॉल्ड HbA1c, व्हिच यू वुड नो HbA, ये आपके प्रीवियस 3 मंथ्स का शुगर कंट्रोल का आइडिया दे देता है। इफ दैट इज इन कंट्रोल, आप अपने रेगुलरली मेडिसिन्स ले रहे हो, सो व्हाई कैन यू नॉट डू एनी स्किन ट्रीटमेंट्स? सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो डॉक्टर, ये जो जैसा कि एक्सोसोम, ओह यू हर्ड अबाउट एक्सोसोम? यस यस, एक्सोसोम्स थेरेपी क्या है और किसको दिया जाता है, और उसके फायदे क्या-क्या है? Exosome, sir, is it's a very new and recent treatment which has come into us. One of our, जैसे मैंने आपको बोला था पहले, नया ट्रीटमेंट आता रहता है। Exosomes are basically particles which communicate messages between different cells. तो वो सेलुलर लेवल पे आपके सेल्स को दे आर मेकिंग इट मोर हेल्दी। देयर आर स्पेसिफिक एक्सोसोम्स फॉर हेयर, स्पेसिफिक एक्सोसोम्स फॉर बॉडी, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सेल्स, सम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, सम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज एज वेल। अलग अलग एक्सोसोम्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। द वंस आई यूज हियर इन माय क्लिनिक आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। अब ये कैसे डालते हैं हम? बेसिकली थ्रू माइक्रोनीडलिंग। हम वो आपके स्किन पे अप्लाई करते हैं, आइदर ऑन द स्किन या फिर आपके स्कैल्प पे, और हम डर्मापेन व्हिच इज अ माइक्रोनीडलिंग डिवाइस के थ्रू आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज कराते हैं। सेशंस यूजुअली लगते हैं मे बी अबाउट 3-4 सेशंस, once in a month, some people do once in 6 weeks, some people just come in once in 2-3 months also, just as a kind of boost of collagen. तो एक तो ये collagen elastin boost कर रहा है। Second thing is ये आपके cellular level पे cells को cells को healthy बना रहा है, making your hair cells healthy, making your skin cells healthy. So very good for things like hair loss, very good for pigmentation, very good for acne scars. बहुत versatile चीज है ये, and जो results जो मैं देख रहा हूँ मेरे center में are really fabulous. So this all comes under the broader field of regenerative medicine. So when I go for like a workshop or a conference either in India or abroad, आजकल सब लोग exosomes के बारे में बात कर रहे हैं। So really good technology and very effective. और मुझे बड़ा मजा आ रहा है exosome यूज करके। मेरे काफी patients भी बहुत खुश हैं। So बहुत खुश हैं with exosome. So you know we combine with things like PRP के साथ combine कर लिया, या अपने growth factors के साथ combine कर लिया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो एंड इट्स मिनिमली इन्वेसिव। इसमें आपको क्योंकि हम माइक्रोनीडलिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका इंजेक्शन नहीं लगाना, यू डोंट नीड टू अंडरगो सर्जरी, एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। तो जैसा कि अभी एंड वन मोर थिंग आई वुड से सर अबाउट एक्सोसोम, सॉरी, इट्स वेरी गुड फॉर वुंड हीलिंग। मतलब आपके ट्रीटमेंट के बाद या फिर सर्जरी के बाद अगर आप एक्सोसोम्स यूज करोगे तो स्कारिंग कम हो जाता है, एंड पेशेंट का हीलिंग, स्किन हीलिंग बिकम्स मच बेटर। तो जैसा आपने पिंपल्स के बारे में अभी आपने अपनी बातों में बताया, तो जैसे कि टीनेजर्स होते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी एक एज है जिसकी वजह से ये पिंपल आ रहे हैं, ये अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जो 40s में है, 50s में है, उनको भी बहुत आ रहे हैं। तो क्या अभी एज की बीमारी नहीं रह गई है? सर इट इज नॉट ओनली एन एज थिंग, इवन अडल्ट पेशेंट्स कैन सफर फ्रॉम थिंग्स लाइक एक्ने, जो पिंपल वगैरह है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हार्मोन्स, हार्मोनल फ्लक्चुएशन जो होता है फीमेल्स में, खासकर मेनोपॉज, ये सब होता है, वो कंट्रीब्यूशन है। डाइट plays a big role, जैसे अगर आप ज्यादा ऑयली खाना, शुगर एंड ऑल, इफ यू आर ईटिंग मोर, इट प्लेज अ रोल। ऑल्सो आप क्या स्किन केयर रूटीन यूज कर रहे हो, क्या आप रेगुलरली अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज कर रहे हो? अगर आपका स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है, क्या आप उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो? काफी सारे चीजें इन्वॉल्व है। स्ट्रेस समटाइम्स एग्रीवेट्स एक्ने, सो दीज आर थिंग्स व्हिच कभी-कभार पीपल होम रेमेडीज भी कर लेते हैं कुछ जो स्किन के वो स्किन बैरियर को डिस्टर्ब कर देता है, and then you get all kinds of problems. So these things all have to be taken into consideration. Acne can most commonly we see it in the adolescence age group, but yes, it can happen in any age group as well. तो हमें अपना स्किन का केयर करना चाहिए। We should take care of our skin. तो डॉक्टर ईशान, जैसे कि मुझे कितनी बार हाइड्रोफेशियल करवाना चाहिए, और क्या हाइड्रोफेशियल सभी प्रकार के त्वचा के लिए फेमिलियर है या नहीं, या
क्या उसके आस So basically, Hydra facial is a medical facial. मतलब it is done using proper medical equipment and सारे medicated products जो बहुत बहुत अच्छे products हैं, properly used in a center, it gives very very good results. अब normally जो मैं Hydra facial I use it for things like dehydrated skin, tan removal, blackhead whitehead को remove करता है, anti aging में भी helpful है. जो patient बिल्कुल अपना basic anti aging journey start करना चाहता है, Hydra facial is a very good option to start with. It gives a very nice glow. या फिर आपने चाहे पार्टी के पहले कर लिया या इवेंट के पहले कर लिया, आपका स्किन बिल्कुल it looks like $1,000,000, shining, glowing, ये सब. ओके But even with these things, they can be a little bit addictive. कि आपका वो जो ग्लो इतना बढ़िया आ गया, आपको हर 5-10 दिन में कराना है. So no. Once in a month या once in 6 weeks आप हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं. उससे आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लोई हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन हम उसको कस्टमाइज करते हैं. जैसे अगर किसी का पेशेंट का एक्ने का ज्यादा कंसर्न है, तो वी कस्टमाइज द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज. या फिर किसी का पिगमेंटेशन का कंसर्न है, वी कस्टमाइज. तो इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर मेडिकल सेंटर सो दैट समवन लाइक मी और someone like a proper doctor or a surgeon can supervise everything, and we get very very good results with Hydra facial. One of my favorite treatments. मैं भी अपना Hydra facial कराता रहता हूँ, and अभी काफी साल से चल रहा है, एटलीस्ट 2-3 साल से. तो इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइस, ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट. तो हाइड्रा फेशियल के बाद क्या तुरंत लेडीज या मेकअप कर सकते हैं? बिल्कुल. उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका कोई डाउन टाइम. दैट्स व्हाई इट्स वेरी पॉपुलर इन माय क्लिनिक सर. तो मेरे क्लिनिक में जैसे अगर कोई नीडल बेस्ड ट्रीटमेंट या फिर कोई सर्जरी के लिए क्या आ रहा है, तो उसके लिए सोचना पड़ता है. हाइड्रा फेशियल इज नथिंग लाइक दिस. इट्स रिलैक्सिंग, मसाज भी है उसमें, सो यू फील गुड, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउन टाइम. तो कोई रेडनेस वगैरह नहीं आता, तो मेकअप उसी रात लगा सकते हैं. Okay. They can go out, they can put the makeup the same day, go out for their party and they'll be looking amazing. मतलब बहुत ही बढ़िया. सब कि क्या कराया आपने, कुछ तो कराया है, so that kind of thing. But there's no downtime and very relaxing. अच्छा, एक क्वेश्चंस मेरे मन में चल रहा है कि जैसे पोस्ट डिलीवरी बहुत लेडीज को स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बहुत सारे नीचे लोअर पार्ट में इस तरह से. अब वो जो है 2 पीस या कुछ इस तरह के अटेयर्स नहीं पहन सकते बिकॉज कि वो पूरा पार्ट जो है कि विजिबल हो जाता है. तो उसको कैसे आप so sir actually one of the biggest things now in my clinic also is non-invasive body contouring. मतलब non-invasively without surgery, using a laser and using my lymphatic drainage devices, radio frequency devices, हम स्किन को टाइट करते हैं, हम मसल्स को टोन करते हैं, और हम स्टबर्न फैट लॉस को भी रिमूव कर सकते हैं कंप्लीटली नॉन इन्वेसिवली. नो साइड इफेक्ट्स, नो डाउन टाइम. सेशन लिया और आप वापस चल दिया, यू गो टू ऑफिस वगैरह. तो ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं, खासकर फॉर वुमेन पोस्ट डिलीवरी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. या फिर मेनोपॉजल वुमेन जिनका सडनली वेट गेन हो जाता है, क्योंकि एक तो वो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ऊपर से स्किन लूज हो जाता है, मसल टोन गोज. सो इट गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. हम वो स्ट्रेच मार्क्स पे वर्क करते हैं विद दीज डिवाइसेस along with things like microneedling. We have certain lasers which work. Injectable treatments भी आते हैं आजकल. आपने इसमें भी सुना होगा salmon sperm. तो ये salmon sperm injections which basically contain polynucleotides, ये भी stretch marks पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. अब anything with body like this stretch marks requires sessions. और कभी भी हम ये नहीं बोलते कि हम 100% आपके सारे stretch marks रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो स्किन को टाइट करना, not only on abdomen but even on arms, even on the neck, even on the thighs, हम कर सकते हैं. Sessions लगते हैं, consistency is required. We can give very good results for stretch marks and loose skin, but it also requires lifestyle. कि जिम में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, stretching, something like that. Maybe at least doing about 10,000 steps every day, just a little bit of brisk walking. It really helps. It really helps. So and then of course there are topical creams and serums. आजकल मेरे silicone based creams हैं जो मैं recommend करता हूँ to apply post pregnancy and post delivery, जो stretch marks पे बहुत अच्छा effect करते हैं.